Good morning. My name is Akshay Mohan Jha, and today I am going to take you through the chapter number 2, that is noun of class 8th. This is for class 8th. Yesterday I did a video for you children on the topic noun. I made a video and I actually did an online it was a cam recording video on noun, wherein I took you through the exercises, the chapter. I gave you the bullet points and I discussed the chapters. I discussed the exercises. I discussed the exercises from exercise A to E. Today I am going to redo that, and the reason why I am doing this is because I was not very satisfied with the video that I posted yesterday. कहने का मतलब ये है कि मैंने कल आपको नाउन चैप्टर पढ़ाया था, मैंने उसका वीडियो जो है आपके एक्सरसाइज बुक एक्सरसाइज से लेके ही डाला था। मैं आज दोबारा से इस वीडियो को डाल रहा हूँ। उसका पर्पस ये है कि मैं दोबारा से इस चीज़ को आपको फिर से बताऊँ। कारण ये है कि मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं था अपने पिछले वीडियोस को लेके, इसीलिए मैं ये दोबारा से वीडियो बना रहा हूँ। A very important thing is that you don't have to write whatever literature is written here on this page. कहने का मतलब कि आपको ये सब जो चीज़ लिखा हुआ है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको समझने का काम है। If you feel like you can just write it in your rough copy for your better understanding. अगर आपको लगता है कि कुछ बात इसमें ऐसा है जो आप लिखना चाहिए या आपको ध्यान में रखना चाहिए, तो आप उसको रफ़ कॉपी में कहीं नोट कर सकते हैं। But you don't need to rewrite this because it's already there in book. However, there are few points that I have added on based on my experience of teaching. हाँ, ये भी बात है कि ज़्यादातर बातें आपकी बुक से ली गई हैं, लेकिन इसमें कुछ एक बात ऐसी भी है जो मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस, अपने नॉलेज बेस से इसमें ऐड किया है। सो टू मेक दिस चैप्टर सिंप्लीफाइड, इस चैप्टर को आसान बनाने के लिए मैंने ये सब किया है। Now one more thing that I want to tell you is that this video is a complimentary video of the video that I posted yesterday. कहने का मतलब ये है कि ये जो वीडियो है ये एक तरह का सहायक वीडियो है कल वाले वीडियो के साथ ही, चूँकि मैं उससे ज़्यादा संतुष्ट नहीं था। But whatever I taught you yesterday is concrete. It's something that, and we are going to just redo it, and I am going to revise or reiterate what we did yesterday. मैं दोबारा से वही चीज़ बताऊंगा, थोड़ा सा अलग हटके दोबारा से रिफ़ाइन करके उसको समझाऊंगा, और मैं चाहूँगा कि आप लोग उसको भली भांति समझ लीजिए। Noun is the name of person, place, animal or thing, or we can also say that the naming word for animals, person or thing is called noun. Noun जो है वो व्यक्ति, स्थान या जानवर या किसी चीज़ का नाम होता है, इसको ही हम नाउन कहते हैं। We can also say that naming word for animals, हम ये भी कह सकते हैं कि जानवरों का नाम या व्यक्ति का नाम या किसी भी चीज़ का जो नाम है उसको हम नाउन कहते हैं। Nouns are of following kinds. यहाँ देखिए मैंने ये लिखा है, Nouns are of following kinds. We all know that, and we know it for a very long time now. I think you people are studying noun from standard 6 onwards. तो नाउन जो है उसमें कितने तरह के काइंड्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, वो हम लोग पहले से जानते हैं। Common noun, proper noun, collective noun, abstract noun और material noun. Now if you read the first three, common, proper and collective noun, they are called countable nouns because we can count them. Common, proper और collective noun को हम लोग countable noun कहते हैं चूँकि हम इसको count कर सकते हैं। However, abstract noun and material noun are called uncountable. Abstract और material noun को हम लोग uncountable कहते हैं। Nouns have gender. They are masculine, feminine, neuter and common. Noun जो है उसमें लिंग होता है। नाउन यानी संज्ञा का लिंग होता है। ये मुख्यतः से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग और सामान्य लिंग भी, इसके 4 भेद हैं। There are 4 kinds. Now what is a common noun? A common noun is a name given to a class of things or people are called common noun. अब किसी भी ग्रुप को, किसी भी समूह को अगर एक सामान्य नाम से संबोधित किया जाता है तो उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी से काउ, गाय जब हम बोलते हैं तो गाय की जितनी भी प्रजातियां आती हैं सारी की सारी, जैसे साहिवाल गाय,
जर्सी गाय या जो हमारा रूरल मतलब इंडियन काउज़ हैं, वो सारे के सारे प्रजाति, चाहे वो गुजराती गाय हों, ये सारे के सारे इसमें आ जाती हैं। सो दैट्स अ कॉमन नाउन। जो समूह को आप बुलाने के लिए संबोधित करते हैं उसको कॉमन नाउन कहते हैं। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हियर दैट अ कॉमन नाउन ऑलवेज बिगिन विद अ स्मॉल लेटर। कॉमन नाउन जो है हमेशा शुरू होता है एक छोटे से लेटर से, क्या स्मॉल लेटर से शुरू होता है। ऑन द अदर हैंड, a proper noun is a noun given to a specific name of person, place, animal or thing. Proper noun जो है वो आदमी का नाम, जगह का नाम, जानवर का नाम या चीज़ का नाम को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन जो है हमेशा शुरू होता है कैपिटल लेटर से। नाउ लुक एट हियर, सर्कल द वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। सर्कल इसमें आपको करना है कि आपको सर्कल करना है जो इस ग्रुप के समूह का नहीं है, इस समूह का नहीं। फॉर एग्जाम्पल लैम्प, फाउन, काइगनेट, ईगल। लैम्प किसको कहते हैं? लैम्प कहते हैं भेड़ के बच्चे को, दैट इज कॉल्ड लैम्प। फाउन इज एक्चुअली डियर, इज द cub of a deer, means it's actually the baby of deer. fawn उसको कहते हैं। कैगनेट is swans baby, means हंस के बच्चे को कैगनेट कहते हैं। और ईगल जो है ये हम लोग जानते हैं चील को कहते हैं ईगल। सो हम यहाँ देखते हैं सारे चीज़ के बच्चों को हम लोग नाम दे रखे हैं, और यहाँ ईगल जो है वो सिर्फ एक पक्षी का नाम है, इसीलिए हम लोग ईगल को यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे, सर्कल करेंगे। नाउ द सेकेंड थिंग इज़ माउस, डेस्क, चौकी, मॉनिटर, हार्ड डिस्क। माउस, मॉनिटर और हार्ड डिस्क जो है कंप्यूटर टर्म्स है। डिस्क चौकी जो है वो कंप्यूटर टर्म नहीं है, इसलिए इसको हम अंडरलाइन करेंगे, सर्कल करेंगे, सॉरी। कर्नल, लेफ्टिनेंट, यूके, प्रोफेसर। अब ये COL जो है वो कर्नल का एब्रीविएशन है। ये एक रैंक होता है आर्मी में। लेफ्टिनेंट रैंक होता है आर्मी में, कर्नल, लेफ्टिनेंट रैंक होता है आर्मी में। प्रोफेसर एब्रीविएशन है प्रोफेसर का, और यूके जो है एब्रीविएशन है वो है यूनाइटेड किंगडम का। तो हम जान रहे हैं कि ये सारा एब्रीविएशन है कर्नल, लेफ्टिनेंट, प्रोफेसर, बट यूके एब्रीविएशन कंट्री का है, इसलिए हम इसको सर्किल करेंगे। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू योर एक्सरसाइज ए। एक्सरसाइज ए का 2 एग्जाम्पल हम आपके साथ कर रहे हैं, उम्मीद है कि आप लोग बाकी कर लीजिएगा। द सेकेंड इज़ द नेम द नाउन ग्रुप। अब यहाँ पे नाउन ग्रुप को आपको अंडरलाइन करके बताना है। पहला है एरी, कॉबवेब, लायर, शेड। ये सब एनिमल होम्स हैं, ये आपके बुक में दिया हुआ है ना। उसके नीचे आते हैं, पहला क्वेश्चन है कॉर्न, मेज, बार्ली, वीट। ये सारे एडिबल प्लांट हैं, खाने योग्य पौधे हैं, या इनको आप सीरियल्स भी कह सकते हैं, बट आई एम जस्ट राइटिंग एडिबल प्लांट्स। इफ़ यू फील लाइक यू कैन ऑल्सो मेंशन इट एज सीरियल्स। सीरियल मीन्स जिसको आप खाने में यूज़ करते हैं, जिसका सीरियल प्लांट्स भी कहते हैं इसको, लेकिन दिस आर एडिबल प्लांट्स, सो यू कैन राइट दिस। CNG, केरोसिन, पेट्रोल और डीजल, ये सब एग्जाम्पल है कंबशन ऑयल का। ये सब एग्जाम्पल है कंबशन ऑयल का। नाउ चिल्ड्रन, यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर कि जब आप इन सब को पढ़ते हैं, कोई वर्ड आपको नहीं समझ में आता है, तो सबसे अच्छा तरीका है, चूँकि आप घर पे हैं और ये सबसे अच्छा तरीका है खुद से पढ़ के समझने के लिए, तो इस समय आप डिक्शनरी का ज़्यादा यूज़ करें और देखिए, खासकर जो वर्ड नहीं समझ में आता है उसको डिक्शनरी से पहले देखिए। फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप किसी भी समय सुबह से लेकर 4 बजे तक मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, ठीक है। सुबह 9 बजे के बाद ही उम्मीद है आप लोग कीजिएगा, उससे पहले ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। नाउ एक्सरसाइज C देखते हैं, मैच द कॉमन नाउन्स टू द करेक्ट प्रॉपर नाउन। ये एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है, आपके बुक में जैसे दिया हुआ है। पहला एग्जाम्पल है गर्ल, और रिया के सामने बॉक्स में पहला नंबरिंग दिया हुआ है, नंबर 1। सिमिलरली बॉय के सामने आप समीर के पास जाइएगा, वहाँ नंबर 1 कर दीजिए। एक्सरसाइज में जाके वो बुक में आप ब्लॉक में नंबर 1 कर सकते हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। मैन तो मिस्टर शर्मा इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ऐसे करके हम लोग इस एक्सरसाइज को बना सकते हैं। ना 4th है अंडरलाइन द कॉमन नाउन्स एंड सर्कल द प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन को आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है और सर्कल करना है प्रॉपर नाउन।
अब यहाँ देखिए, द बॉस्टन टी पार्टी वॉज एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क ऑफ अमेरिकन रिवोल्यूशन। तो यहाँ बॉस्टन टी पार्टी जो है उसको आप सर्कल कर दीजिए। अब देखिए, ये जो एग्जांपल है इसमें साफ साफ है बॉस्टन जो है कैपिटल में लिखा हुआ है और टी पार्टी लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। सेकंड देखिए, लैंडमार्क, लैंडमार्क जिस जगह का पहचान होता है उसको लैंडमार्क कहते हैं, तो इसको आप सिंपली अंडरलाइन कर लीजिए। और फिर है अमेरिकन रेवोल्यूशन, ये भी एक कैपिटल से शुरू हुआ है, तो ये भी एक प्रॉपर नाउन है। ऐसे आपको बनाना है ना। और पहला एक्सरसाइज जो है आई लर्न हाउ टू मेक बॉन्साई फ्रॉम जापानीज़ लेडी। इन दोनों में देखिए, दोनों में एग्जाम्पल में बॉन्साई और जापानीज़ लेडी जो है ये आपको प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल, इसको आप ऐसे कर लीजिएगा, गोल कर लीजिएगा। सेकंड है गूगल इज़ द बेस्ट सर्च इंजन ऑन द इंटरनेट। गूगल जो है वो सबसे अच्छा बेस्ट सर्च इंजन है, तो गूगल को आप गोल कर लीजिए और इंजन और इंटरनेट को आप सिर्फ अंडरलाइन कर लीजिए बिकॉज दीज आर कॉमन नाउन। फिल इन विद द कलेक्टिव नाउन्स फ्रॉम द बॉक्स। अब एक्सरसाइज ई पे जाइएगा तो वहाँ सारा आपको दिया हुआ है, अ डैश ऑफ सोल्जर्स, डैश ऑफ वेसल्स, तो आप अंडरलाइन करके लिख सकते हैं अ रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स और फ्लीट ऑफ वेसल्स। ऐसे करके आप एक्सरसाइज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। नाउ द exercise F, underline the collective nouns and use the given common nouns from the box to complete the sentences. इस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज दिया हुआ द ट्रुप ऑफ एक्रोबैट्स परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज, ये एग्जाम्पल बना हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। और यहाँ पहला वाला है आई मेट अ बेवी ऑफ ब्यूटीफुल लेडीज़। यहाँ लेडीज़ होगा, बेवी होता है समूह, इसका यूज़ हम लोग बी के साथ भी करते हैं बट खूबसूरत औरतों के साथ भी करते हैं। सो बेवी इज़ अ कलेक्टिव attribute given to beautiful ladies or girls. So I met a bevy of beautiful ladies at the party. यहाँ ladies होगा। Second है the bench of judges had a hard time taking a decision. तो यहाँ a bench of, यहाँ सबसे appropriate है judges, no other collective noun will fit here. So I hope I have made you understand to do until exercise F. However, जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ मैं उसमें पाता हूँ कि बहुत कम समय लग रहा है इसको मतलब बहुत कम समय दे रहा हूँ उसको, लेकिन बात यह है कि ये अपलोड नहीं होता है। इफ़ आई मेक अ लॉन्गर वीडियो इट विल नॉट अपलोड, द सिस्टम डजंट अपलोड्स इट वेरी क्विकली, ये पूरा समय लग जाता है, इसीलिए आई एम लीविंग इट टिल हियर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू डू फ्रॉम एक्सरसाइज A to K. I am going